Hello, students. Good morning to all of you, and welcome back in our English study channel. In this period, today we are going to start a new chapter from our English literature book, The Children's Song. This poem is composed by Rudyard Kipling, and today I am going to explain each and every lines of this poem. In this poem, you have to see the poems are composed into the four lines, have one stanza each. If you will count that, you have a task. I am giving you a task to count the stanza and the one stanza of four lines having each in this poem. Okay, so you will count the stanza and also comment that in how many stanzas this poem have been composed. Okay, so let us start the explanation of this poem. First, you can see here the rhythmic order, rhyming scheme. What is the rhyming scheme of the poem? First, I have already told you, if we are asked to find out the rhyming scheme of the poem, you have to count the words, last words of the first line, second line, third line, and fourth line, okay, of each stanza. So, first word of the first line, last word of the first line is thi, and last word of the second line is b. So, thi and b is rhyming with each other. So, the rhyming scheme of first and second line is a b, thi b, place race, a b c d. Okay, a b, सॉरी ए थी बी, अगर थी को हम ए मानते हैं तो बी को भी ए ही माने, बिकॉज दोनों एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, ए बी बी. ओके, प्लेस विथ रेस एंड थी विथ बी. सो दिस वॉज अबाउट द राइमिंग scheme of the poem. This poem is composed in the four lines of stanza, and in how many stanza you will write in the comment box, and the rhyming scheme a b b. Okay, let us start the explanation. लैंड ऑफ आवर बर्थ वी प्लेस टू थी. लैंड ऑफ आवर बर्थ मतलब जिस ज़मीन पर, जिस पृथ्वी पर हम लोग जमे हुए हैं या फिर जन्म लिए हुए हैं, उसकी हम लोग कसम लेते हैं. थी मतलब यू. एक्चुअली ये जो वर्ड थी है, थी इज़ नॉट एन इंग्लिश वर्ड, दिस वन इज़ अ ग्रीक वर्ड्स विच वॉज ऑलमोस्ट यूज्ड इन द एलिजाबेथन पीरियड, मोस्टली बाय द शेक्सपियर एंड अदर पोएट्स. सो थी मीन्स यू. ओके, और थाई जब आया जाएगा THY तो उसका मतलब हो जाएगा योर. सो यू शुड नॉट बी कन्फ्यूज अबाउट दिस वर्ड थी एंड थाई. सो लैंड ऑफ आवर बर्थ वी प्लेस टू थी, जिस पृथ्वी पर हम लोग जन्म लिए हैं उसकी हम लोग कसम लेते हैं. आवर लव एंड टॉयल इन द ईयर्स टू बी. लव मतलब प्यार, टॉयल मीन्स स्ट्रगल, मतलब हमारा प्यार और संघर्ष जितना भी वर्षों तक हम लोग चलेंगे वो अपने लैंड के लिए करेंगे. When we are grown and take our place, जब हम लोग बड़े हो जाएंगे और अपने अपने जगह ले लेंगे. अपने अपने जगह का मतलब when we are appointed somewhere else. ओके, जैसे कि जो भी बच्चा बड़ा होता है तो फिर कहीं ना कहीं वो अपॉइंट होता है, कोई ना कोई सर्विस करने चला जाता है. तो वो कह रहा है बच्चा कि जब हम लोग बड़े हो जाएंगे, when we are grown and take our place, और जब हम लोग अपने जगहों पर एकदम से अस्थाई हो जाएंगे. एज मैन एंड वुमेन विथ आवर रेस. विथ आवर रेस मतलब हम लोग अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जब एक बड़े मैन हो जाएंगे, आदमी हो जाएंगे, फिर औरतों के रूप में तब्दील हो जाएंगे बच्चों से, तब हम लोग आपकी सेवा करेंगे. किनकी? लैंड ऑफ आवर बर्थ की. ठीक है, जहाँ हमने जन्म लिया है. नेक्स्ट, फादर इन हेवन हु लवस्ट ऑल. यहाँ पर भी आप लोग देखोगे दिस लाइन, in this stanza also the same rhyming scheme are followed as the rhyming scheme was followed in the above stanza. All with call. If we will take all as a, then second line last word call, all with call, both are rhyming with each other. So this here also a age with heritage, AABB. Okay, rhyming scheme is AABB. Father in heaven who lovest all. जो फादर ऑफ हेवन मीन्स गॉड. फादर ऑफ हेवन मीन्स गॉड, जो स्वर्ग के फादर हैं मतलब गॉड हैं, जो सबको प्यार करते हैं इस पृथ्वी पर. ओ हेल्प थाई चिल्ड्रेन व्हेन दे कॉल. ओ हेल्प थाई चिल्ड्रेन व्हेन दे कॉल. नाउ स्टूडेंट्स लुक हियर,
we have also find out the aesthetic lines of this poem. And what is the figure of speech in this line? Oh hail thy children when they call. This is the apostrophe. Okay, figure of speech apostrophe are used in this line. Oh hail thy children when they call. जब भी कोई किसी को संबोधित करता है, when we address someone by using o array, ठीक है, वहाँ पर होता है फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रॉफी. ओ हेल थाई चिल्ड्रेन व्हेन दे कॉल. तब आप अपने बच्चों की तब हेल्प करिएगा, भगवान को कह रहा है पोएट, ठीक है, जब वो आपको पुकारेंगे. दैट दे मे बिल्ड फ्रॉम एज टू एज एन अनडिफाइल्ड हेरिटेज. अनडिफाइल्ड हेरिटेज मीन्स अनपॉल्यूटेड और प्योर. मतलब अनपॉल्यूटेड का मतलब जो वायु से या फिर एयर पोल्यूशन होता है वो नहीं, ठीक है ना. यहाँ का मतलब होता है प्योर, मतलब सैक्रेड, पवित्रता से है. इसका मीन्स होगा पवित्रता से. दैट दे में बिल्ड फ्रॉम एज टू एज, मतलब जो एक से दूसरे एज में, दूसरी पीढ़ियों में बनाते हुए गए हैं, जिन्होंने हेल्प किया उसमें, और उस हेरिटेज को, उस कल्चर को, उस पूर्वजों को बनाने के लिए, एकदम अनप्योर बनाने के लिए आप हम लोगों की हेल्प करिए, ठीक है ना. सो स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. Yes, now on next page, let us read the poem. I hope everybody have the book in front of them. Teach us to bear the yoke in youth. आई होप कि आप सभी लोगों को इसमें क्लियर नहीं हो रहा होगा लाइन्स में क्या लिखा है, बट यू मे गेट क्लियर योर लाइन्स फ्रॉम योर बुक. ओके, सबके पास बुक होगी. टीच अस टू बियर द योक इन यूथ. यू स्टूडेंट्स, योक मतलब होता है हल, ठीक है, हल. एंड इन अदर सेंस हियर, इसका सेंस दूसरे भाव में लिया गया. योक मतलब जो हमारे कंधों पर जिम्मेदारियां दी गई हैं, द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज गिवन ऑन आवर सोल्जर्स इज here used as a words yoke. okay, teach us to bear मतलब सहना, tolerate करना, to tolerate someone. teach us to bear, हमें सहने का मतलब ज्ञान दीजिए. हमें उसको सहने का ज्ञान दीजिए. किसको? जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, यूथ हो जाते हैं, तो उसमें जो जिम्मेदारियां हमें दी जाएं अपने लैंड के लिए, उनके हेल्प के लिए, तो उनको सहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमें दीजिए. विथ स्टीड फास्टनेस एंड केयरफुल ट्रूथ, मतलब एकदम जो सत्य को सहते हुए, हम उसका ध्यान देते हुए अपने जिम्मेदारियों का वहन कर सके, उसकी शक्ति हमें दीजिए, फिर वो हमें ज्ञान दीजिए. दैट इन आवर टाइम द ग्रेस में गिव, जो हमारे समय में ग्रेस में गिव, जो आपके द्वारा जो हम लोगों को दया दी जाए, उसको सहने के लिए हमें शक्ति दीजिए. द ट्रूथ वेयर बाय द नेशंस लिव, और वो सत्य हमें दीजिए जिससे कि नेशंस मतलब हम अपने राष्ट्र का विकास कर सकें, या फिर हम अपने राष्ट्र को आगे ले जा सकें, अपने उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए काम कर सकें. टीच अस टू रूल हियर आल्सो यूथ विथ ट्रूथ. राइमिंग स्कीम ए ए, गिव विथ लीव, राइमिंग स्कीम बी बी, ए ए बी बी. ओके, एंड दिस इज द थर्ड स्टैंजा. Stanza number 4. Teach us to rule ourselves always. Always means always. Okay. Teach us to rule ourselves, मतलब जब भी हम लोगों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि हम लोग कोई अधिकारी बनते हैं या फिर कोई अच्छे पोस्ट पे जाते हैं, तो खुद के लोगों को, द पीपल हु आर रिसाइडिंग इन आवर कंट्री, दे आर आवर सेल्फ पीपल, और उनके ऊपर हम लोगों को रूल करना, मतलब अपने एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रूल करना आए हमेशा. कंट्रोल्ड एंड क्लीनली नाइट एंड डे. कंट्रोल्ड एंड क्लीनली नाइट एंड डे मतलब दिन और रात. हम लोग एक कंट्रोल मतलब बंधे हुए या फिर कंट्रोल नियंत्रित रूप में हों, और हमारे जो माइंड हो वो हमेशा साफ हों दूसरों के प्रति. दैट अंडर थी वी में पजेस. दैट अंडर थी मतलब आपके नीचे रहते हुए, या फिर आप के नियमों का पालन करते हुए हम लोग अपने आप में उसको ला सकें. नो
maimed our worthless sacrifice. Maimed means, students, let me see what is the meaning of maimed. Actually, yes, half hearted, मतलब उन चीज़ों को हम लोग अपने आधे दिल से न करें और अपना पूरा सेक्रीफाइस करें अपने देश के लिए. नाउ स्टैंजा नंबर 6. Teach us to look in all our ends. So students, this stanza we have completed, and in the next class we will complete the remaining stanza. Okay, so this is the video for today, and last 3 stanza means 1 2 3 4 stanza, sorry, total I think this poem has been composed into the 7 or 8 stanza. You will count it and you will also tell me, and remaining thing we will discuss in the group. Thank you for this chapter, and I hope everybody will like and subscribe. नेक्स्ट क्लास में हम लोग PDF के थ्रू से इसको कंप्लीट करेंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.